Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC secretarial practice. As you all know, we have completed our first chapter, that is Introduction to Corporate Finance, and second chapter also, that is Sources of Corporate Finance. And then we have started with the third chapter, that is Issue of Shares. And in Issue of Shares we have already completed introduction part, issue of shares second question, and third, that is methods of issue of shares. And we all know that in methods of issue of shares there are four methods. Okay, so company use four methods to issue the share to their existing employees. All right, so we have already completed first method, that is public offer, and then we also completed second method, that is issuing the shares to existing equity shareholders. Okay, now ये दो methods हो गया. Now we are going to start with method number third, that is offering the shares to existing employees. Okay, so as you can see here, previously हमने क्या पढ़ा था, company is issuing the shares, but to whom? To their existing equity shareholder. That means those who are the shareholder of the company. Company is giving them the shares. All right, but at the same time, if you talk about offering the shares to existing employees, that means company is offering the share to their existing employee. That means those who are working in a company as an employee of the company is giving them the shares. Okay, तो इसके बारे में पहले एक छोटा सा जो मेथड है वो हम लोग देख लेते हैं, इसका डिटेल देख लेते हैं एक्चुअली में ये है क्या. फर्स्ट, व्हेन यू टॉक अबाउट ऑफरिंग द शेयर टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? दो रीजंस है. फर्स्ट, इफ़ अ कंपनी इज़ गिविंग देम द शेयर्स एंड ऑफरिंग द शेयर्स टू their employees, and when the employees purchase the share of the company, they will become the owner of the company, because we all know that equity shareholders are the owners of the company. So if an employee purchase the equity share of the company, then the employee will become the owner of the company. फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड एडवांटेज क्या होगा? ये एडवांटेज किसको गया? ये एम्प्लॉय को गया, क्योंकि नाउ एम्प्लॉय इज बिकमिंग द ओनर ऑफ द कंपनी. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट कंपनी का क्या फ़ायदा है? then if a company is giving the share to the existing employees, then those employees will not leave the company. Okay, so the company can retain the good employees of the organization in a company only. alright, so दोनों का फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे. पहला एम्प्लॉई को जो है ओनरशिप मिल रहा है, और जो कंपनी है उसका जो एम्प्लॉई है, ओके, वो एम्प्लॉई कंपनी छोड़कर नहीं जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्कीम. alright, so now we are going to see, if you talk about this third method number C, in that you are going to learn four schemes. So first, that is ESOS, ESPS, SARS and sweat equity. So as you can see here, ESOS means what? Employee stock option scheme. ESPS means what? Employee stock purchase scheme. And SARS means what? Stock appreciation right scheme. And sweat equity shares. ओके, तो ये जो स्कीम्स आपको दिख रही है, स्मॉल सी स्कीम्स है, एंड इसमें कुछ कंडीशंस है. तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्कीम, एंड देन व्हाट आर द प्रोविजंस एंड व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन विच अ कंपनी हैव टू फॉलो एट द टाइम ऑफ इशूइंग एंड गिविंग दिस यूजिंग दिस स्कीम. ऑलराइट, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस फर्स्ट स्कीम, दैट इज ESOS, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. लेट्स स्टार्ट नाउ. फर्स्ट, ESOS. Under this scheme, permanent employees, directors or officers of the company or its holding company or subsidiary company are offered the benefit or right to purchase the equity shares of the company at a future date at a predetermined price. That means company is giving the offer to employees. इतना हमको समझा कि employees, बट कंपनी के employees कौन कौन होते हैं? It is also very important. सिर्फ employees जो होते हैं, जो काम करते हैं, वो employees नहीं होते. जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, दे आर ऑल्सो द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. एंड इफ यू टॉक अबाउट होल्डिंग कंपनी, दैट मीन जो दूसरी कंपनी को इस कंपनी ने होल्ड किया हुआ है वो कंपनी, या सब्सिडरी कंपनी जो कंपनी से अटैच्ड है. ओके, वो सारी कंपनी जो होती है, कंपनी कैन इशू टू देम ऑल्सो, कंपनी कैन इशू द शेयर टू देम ऑल्सो. ऑलराइट, सो अभी अच्छे से देखते हैं इसको. Under this scheme, permanent employees, directors or officers of the company or its holding company, subsidiary company are offered the benefits or right to purchase the equity share of the company at a future date at predetermined price. ओके, जैसे कंपनी आज अगर शेयर इशू कर रही है, तो आज जितना भी शेयर का प्राइस होगा, से एग्जांपल 10 रुपया आपने अगर परचेज़ किया, तो फ्यूचर में जाकर वो जो 10 रुपये का शेयर है आपका, जो 10 रुपीज़ का शेयर है, दैट द प्राइस ऑफ द शेयर विल इंक्रीज, और कंपनी वो टाइम पे
आपको जो मार्केट वैल्यू होगा, एग्जाम्पल अगर 15 रुपया होगा तो आपको उससे बेनिफिट मिल जाएगा। 10 का शेयर आप कितने में बेचोगे? 15 में। ओके, नाउ एसोस encourage employees as they feel proud to be owners of the company. Okay, they are becoming the owners as we just discussed now, for which they are working, and company also benefits are it can retain good employees. Okay, so company का benefit क्या है? Company is retaining the good employees, and if you talk about employees, so employees is becoming the owner of the company. All right, but if you talk about this scheme, so there are certain provisions, there are certain conditions and rules and regulation which company have to follow, and that we are going to see now. Provisions. Following are the provisions related to ASOS. Number 1, a company may offer the shares directly to the employees or through an employee welfare trust. So company can, if a company wants to issue the share to the existing share employees, in such case company can directly give the share to the employees or एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, जो एम्प्लॉय का ट्रस्ट बनता है उनके थ्रू भी कंपनी कैन इशू द शेयर्स. पॉइंट बी, द शेयर्स आर ऑफर्ड एट अ प्राइस लेसर देन देयर मार्केट प्राइस. ओके, मैंने अभी आपको बताया था कंपनी इज ऑफरिंग द शेयर्स एट अ प्राइस लेसर देन द मार्केट प्राइस. मतलब मार्केट में अगर 20 रुपीज़ है एग्जाम्पल, ओके, तो कंपनी इज गिविंग यू द शेयर एट ₹10 ओनली. ओके, या फिर 15 में दे देगी. ओके, मतलब मार्केट का जो भी प्राइस होगा उससे आपको कम में मिलेगा. ऑलराइट. Point number C, there is a minimum vesting period of 1 year. Now what is the meaning of vesting period? C, period during which the employee uses his option to apply for shares that has been granted to him. मतलब जो कंपनी ने उसको शेयर ऑफर किया है, उस कंपनी वो ऑफर कब तक के वो यूज़ कर सकता है? 1 ईयर तक के. ओके, 1 ईयर तक के वो परचेज कर सकता है शेयर को. ऑलराइट, सी हो गया. नाउ लेट्स सी द डी पॉइंट. Usually company will specify the lock-in period, that is period during which the employee cannot sell his shares. Okay, so if a company is giving them the shares, तो वहाँ पे एक लॉक-इन पीरियड होता है. मतलब ये पीरियड के अंदर एम्प्लॉय जो है वो शेयर को यूज़ नहीं कर पाएगा. ओके, लॉक-इन पीरियड इज़ मिनिमम 1 ईयर बिटवीन ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड वेस्टिंग. मतलब वह 1 साल तक के वो यूज़ नहीं कर सकता है. ओके, अगर आज एक इशू हुआ तो आज से लेकर 1 साल तक के कंपनी क्या कर सकता है? यहाँ पे देखो 1 ईयर बिटवीन ग्रांट ऑफ ऑप्शन, मतलब कंपनी ने आज अगर शेयर ऑफर किया है, ग्रांट मतलब टू गिव द ऑप्शन और ऑफर टू द एम्प्लॉय, तो 1 ईयर आज अगर दिया हुआ है तो 1 साल तक के वो यूज़ नहीं कर सकता है उस स्कीम को. ओके, मतलब वो बेच नहीं सकता है. सिंपल. पॉइंट नंबर ए, शेयर्स इशूड अंडर दिस स्कीम डज नॉट एंजॉय एनी डिविडेंड और वोटिंग राइट्स टिल द एम्प्लॉय बायज द शेयर्स. कंपनी ने ऑफर तो कर दिया, ऑप्शन तो दे दिया, बट कब तक कि उसको वो इसके जो बेनिफिट्स होते हैं शेयर्स के वो नहीं यूज़ कर पाएगा जब तक कि वो शेयर को परचेज़ नहीं कर लेता है. फिर उसके बाद में भी कंपनी क्या करती है? एक लॉक-इन पीरियड रखती है कि भैया 1 साल तक के शेयर आपके पास होगा, यू आर द शेयर होल्डर, बट आपके पास कोई भी राइट नहीं होगा. दैट मीन्स यू कैन ट्रांसफर योर शेयर्स, यू कैन गिव योर शेयर टू अनदर पर्सन. यू आर द एम्प्लॉई, तो वी आर गिविंग द शेयर्स टू यू ओनली, नॉट टू अदर्स. ऑलराइट. पॉइंट नंबर डी, कंपनी हैज़ टू गेट the approval of shareholders through special resolution to ASOS. Okay, that means if a company wants to issue a shares to their employees, so before issuing the shares to the employee company, it is the responsibility of the company that company should ask and take the approval from the shareholders of the company. Okay, अभी यहाँ पे देखो जितनी भी स्कीम्स आपको दिख रही है, ये चारों स्कीम जो आपको दिख रही है यहाँ पे, इफ़ जो भी स्कीम से कंपनी इज गोइंग टू इशू अ शेयर्स, सो इशू करने से पहले कंपनी शुड टेक द अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर. ओके, ये कंपलसरी है. तो एक पॉइंट आपको ये दिमाग में याद रखना है कि कोई भी स्कीम यूज़ करने के पहले कंपनी को अप्रूवल यानी परमिशन लेना है फ्रॉम द शेयर होल्डर. ओके, पॉइंट नंबर जी, एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर हिज ऑप्शन टू एनी अदर पर्सन नॉर कैन बी प्लेज और मॉर्गेज द शेयर्स इशूड अंडर एसोस. ओके, तो ये भी एक कंडीशन है कि प्लेज और मॉर्गेज का मतलब होता है टेकिंग द लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. तो जो शेयर आपको मिल रहा है ये आपका प्रॉपर्टी है, बट कंपनी क्या बोल रहा है? कंपनी बोल रहा है कि ये जो शेयर है, ये जो आपका सिक्योरिटी है, यू कैन यूज़ दिस सिक्योरिटी अगेंस्ट मॉर्गेज और प्लेज. आप उसको रख नहीं सकते हो कहाँ पे? एज अ लोन लेने के लिए आप कोई सिक्योरिटी दे नहीं सकते हो इसको अभी. ओके, पॉइंट नंबर एच, कंपनी हैज़ टू सेटअप अ कंपनसेशन कमेटी टू एडमिनिस्टर इसोस. Company has to fulfill the provision of SEBI, that is Regulation Act 2014. Okay, there are rules and regulation. अब उसके अंदर क्या है हम वहाँ पे नहीं जाते हैं.
बट सिर्फ इतना याद रखते हैं कि सेबी के देयर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सेबी विच अ कंपनी हैव टू फॉलो. तो एज पर दोस रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी हैव टू सेट अप अ कंपनसेशन कमेटी. ऑलराइट, चलो प्लेज और मॉर्गेज देख लो. गिव शेयर एज अ सिक्योरिटी फॉर टेकिंग अ लोन. ओके, क्या कर रहे हैं, गिव शेयर्स को दे रहे हैं एज अ सिक्योरिटी फॉर टेकिंग अ लोन. और मॉर्गेज का मतलब होता है कन्वे द टाइटल टू शेयर्स एज सिक्योरिटी टू लेंडर फॉर टेकिंग लोन. तो शेयर्स को क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी में कन्वर्ट करके लोन ले रहे हैं. तो ये चीज़ अलाउड नहीं किया है कंपनी ने. ऑलराइट, पहला वाला जो हमारा है एसोस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम वो हमारा कंप्लीट हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकेंड स्कीम दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ESPS जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. नाउ अंडर दिस स्कीम द कंपनी ऑफर इक्विटी शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉयज एट अ डिस्काउंटेड प्राइस विच दे कैन बाय एट फ्यूचर डेट. ओके, दैट मीन इफ द प्राइस ऑफ द शेयर इज ₹15, सो कंपनी आपको शेयर का जो शेयर है वो बेच रहा है 10 रुपीज़ में. मतलब अभी फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर में यही शेयर जो 15 रुपीज़ का था अभी आपने कितने में लिया, 10 रुपये में. तो फ्यूचर में जब भी 1 साल के बाद में जो होता है स्कीम के, अभी आगे हम लोग देखेंगे, तो उसके अंदर जो है वो शेयर आपको 15 रुपये में आप बेचोगे. मतलब आपको डायरेक्टली कितना 5 रुपीज़ का एक शेयर के ऊपर बेनिफिट होगा. ऑलराइट, नाउ द कंपनी डिडक्ट्स अ सर्टन अमाउंट फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय टूवर्ड्स द पेमेंट फॉर द शेयर्स. ओके, एम्प्लॉय ने ये स्कीम ले तो लिया, एक्सेप्ट कर लिया. अब जो शेयर्स के बिहाफ में पैसा पे करना है टू द कंपनी, तो ये पैसा जो है एम्प्लॉय अपने जेब से देगा नहीं. ये क्या होगा, जो सैलरी उसका आएगा उस सैलरी में से कंपनी क्या करेगा, वो अमाउंट कट कर लेगा. ओके, ओके, तो ये इतना ही है. नाउ लेट्स सी द प्रोविजन दैट मीन्स कंडीशन. क्या कंडीशन है, कंपनी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन. ये जो कंडीशन है ये कंपनी को फुलफिल करना है. पहला है हमारा डिफरेंट नंबर्स ऑफ शेयर्स कैन बी ऑफर टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़. तो डिपेंड्स अपॉन, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द कंपनी कि कंपनी कितना शेयर कौन से एम्प्लॉय को ऑफर करती है. नाउ पॉइंट नंबर बी, शेयर इशूड थ्रू ESPS शुड बी इमीडिएटली लिस्टेड. द मोमेंट कंपनी इशू द शेयर्स, कंपनी हैव टू लिस्ट दो शेयर्स इमीडिएटली. ओके, ESPS shares will have a minimum of 1 year lock-in period from date of allotment if ESPS is not a part of पब्लिक इशू. अगर पब्लिक इशू को नहीं हो रहा है एंड कंपनी उसके एम्प्लॉयज़ को ही सिर्फ इशू कर रही है तो वो केस में मिनिमम 1 ईयर लॉक इन पीरियड होगा. ओके, यहाँ पे 1 ईयर है, वहाँ पे भी कितना था लॉक इन पीरियड, 1 ईयर था. तो ऐसे आपको याद रखना है कि अभी तक ये 1 ईयर ही है सबका. पॉइंट नंबर डी, कंपनी हैज़ टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ सेबी दैट इज रेगुलेशन 2014. तो इसमें क्या लिखा है देखो, शेयर्स बेस्ड ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट्स. एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए मतलब इस स्कीम के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है कि कंपनी को क्या क्या फॉलो करना है. पॉइंट नंबर ई, कंपनी हैज़ टू गेट द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू ऑफर ESPS. मैंने आपको पहले ही बताया चारों स्कीम्स जो है कंपनी का, इफ़ अ कंपनी इज इशूइंग यूजिंग दो स्कीम देन कंपनी हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम दी देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. ओके, now let's talk about scheme number 3 that is stock appreciation rights scheme. Okay, so the word itself saying that stock appreciation मतलब यहाँ पे appreciate हो रहा है, हमको पता है. depreciation का मतलब कम होना, appreciate मतलब increase होना. तो ये किसको राइट मिल रहा है, उसके एम्प्लॉयज़ को. लेट्स सी नाउ, अंडर दिस स्कीम the employees are given a right to receive appreciation in the value of the specified number of shares of the company at a future डेट. ओके, तो कंपनी एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स टू द एम्प्लॉय कंपनी इन्फॉर्म कर देगा कि फ्यूचर में आगे जाके आपका जो शेयर का प्राइस है इट्स गोइंग टू अप्रिशिएट, ये बढ़ने वाला है. ओके, द कंपनी अलॉट्स अ स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स यूनिट्स दैट आर लिंक्ड टू द वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर्स ऑन द डेट ऑफ द अलॉटमेंट. ओके, ये ऑन द जो है ये अलग अलग है, साथ में हो गया. तो ये ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट. तो जो भी जो स्टॉक अप्रिसिएशन कितना होगा, कैसे होगा, उसके ऊपर क्या क्या कंडीशंस है, व्हाट आर द कंडीशंस. ओके, ऑल सच कंडीशन कंपनी हैव टू इन्फॉर्म टू द एम्प्लॉयज़ एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ओनली. ओके, कंटिन्यू करते हैं. ऑन द रिलेवेंट डेट दैट इज फ्यूचर डेट डिपेंडिंग अपॉन द अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स विच आर लिंक्ड टू द SAR दैट इज स्टॉक अप्रिसिएशन राइट units, the employee is paid the appreciation value in cash or through equity
शेयर्स। ओके, तो जितना भी शेयर इनका अप्रिशिएट हुआ होगा, जो भी अमाउंट अप्रिशिएट होगा वो या तो इनको दे विल रिसीव एज अ कैश, उनको कैश मिल जाएगा, और एल्स कंपनी विल इशू द इक्विटी शेयर टू देयर एम्प्लॉयज़ अगेन। ओके, तो दो ऑप्शन है, या तो इक्विटी शेयर ले लो या फिर कैश ले लो। तो SARS is a form of business compensation given to the employee if the company performs well and its market price of the share goes up. Okay, so basically if you talk about this scheme, so ये जो appreciate हो रहा है ये क्यों हो रहा है? Because their employees has worked very hard, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, that is why company earn a good amount of profit. सो उस प्रॉफिट में से कंपनी का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया शेयर का, सो दैट इज़ वाई कंपनी एग्जांपल कंपनी खुश होकर जो है वो शेयर अप्रिशिएट कर रही है टू देयर एम्प्लॉयज़। ऑलराइट, ओके, अभी आगे देखते हैं। और द एम्प्लॉय डज नॉट हैव टू पे फॉर बाइंग एनी शेयर, देयर इज़ नो नीड टू पे। ओके, इफ दैट एम्प्लॉय टेकिंग द शेयर फ्रॉम द कंपनी, सो देयर इज़ नो नीड टू पे एनीथिंग। ओके, बिकॉज इट्स अ बोनस, ये गिफ्ट है कंपनी की तरफ से टू देयर एम्प्लॉयज़। कंपनी हैज़ टू गिव एम्प्लॉय अ वेस्टिंग पीरियड ऑफ मिनिमम 1 ईयर टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। ओके, यहाँ पे क्या है, देखो कंपनी मिनिमम टाइम दे रही है 1 ईयर का कि आपको शेयर मिल जाएगा, यू विल गेट द शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, यहाँ पे कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लॉक इन पीरियड के बाद में वो यूज़ कर सकता है उस शेयर को, या तो फिर वो उसके पास ऑप्शन है कि उसको लॉक इन पीरियड में ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना, उसके बाद इतना टाइम होता है। लेकिन यहाँ पे लॉक इन पीरियड नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे that employees is not supposed to pay the money to the company. Okay, understanding? So यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो लाइन में आपको कंफ्यूज होगा, इसके लिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ आपको। कंपनी हैज़ टू गिव एम्प्लॉय अ वेस्टिंग पीरियड ऑफ मिनिमम 1 ईयर टू एक्सरसाइज ऑप्शन। शेयर ले परचेज करने के बाद में, उसके बाद आने के बाद में वो यूज़ नहीं कर सकता है उस शेयर को, 1 साल उसको वेट करना पड़ेगा। ओके, देयर इज़ नो लॉक इन पीरियड फॉर SARS, दैट मीन्स कंपनी ने आज इशू किया अगर, तो डायरेक्ट एम्प्लॉय को मिल जाएगा शेयर्स। ओके, तो कोई लॉक इन पीरियड यहाँ पे नहीं होगा। टू इशू SARS, कंपनी हैज़ टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑलराइट, तो मैंने आपको पहले बताया चारों स्कीम में इट इज़ कंपलसरी दैट कंपनी शुड टेक द अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर बिफोर इशूइंग द शेयर्स। नाउ लास्ट पॉइंट, दैट इज स्वेट इक्विटी। इट इज़ वेरी इजी, स्वेट इक्विटी शेयर्स। लेट्स सी नाउ, these are the shares issued by a company to its director or employees at a discount or for consideration other than cash. Okay, so कैश देना होता है कंपनी, तो उस कैश के बदले में क्या दे देगी, उसको शेयर्स मिल जाएगा। और जो शेयर मिलेगा वो कौन से रेट पे होगा? डिस्काउंटेड रेट पे होगा। अगर मार्केट में उसका वैल्यू 20 रुपये है तो आपको 10 रुपये में या 15 रुपये में मिल जाएगा, मतलब डिस्काउंट होके मिलेगा। इट इज़ इशूड in recognition of their valuable contribution to the company which has resulted in increased profit. Okay, so because of their valuable contribution, okay, किसका? एम्प्लॉयज़ का। कंपनी खुश होकर, कंपनी इज गिविंग देम द शेयर्स। ओके, क्यों? अगर उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, दैट मीन्स कंपनी का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हुआ। ओके, प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ तो कंपनी खुश होकर क्या कर रही है? उनको शेयर ऑफर कर रही है। स्वेट इक्विटी शेयर्स रैंक परी पासु विद अदर इक्विटी शेयर्स। ओके, परी पासु का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन परचेज रिसीव द शेयर, सो दे विल ऑल्सो गेट द सेम बेनिफिट लाइक अदर शेयर्स। ओके, परी पासु मतलब दोनों भी सिमिलर राइट्स होगा दोनों शेयर्स पे। दिस शेयर्स हैव अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years, दैट इज दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, लॉक इन पीरियड मतलब ये लोग 1 साल तक के उसको यूज़ नहीं कर सकते, 3 साल तक के ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते किसी को। Company has to get the approval of shareholders through special resolution to issue sweat equity shares. Here also company have to take the permission from the shareholder. Okay. See, purpose का मतलब क्या होता है? Means on equal footing will be treated at par with other equity shares. Okay. जैसा other equity shares है, okay, other equity shares है, वैसे ही ये भी shares है, उसको बोलते हैं परिपसु। Alright. तो ये था हमारा मेथड नंबर C, that is issuing the share through existing एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, आपको कोई भी पॉइंट में या कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी नहीं समझा होगा, देन यू कैन आस्क, यू कैन टाइप अ कमेंट इन कमेंट सेक्शन। जो भी आपको पूछना होगा, यू कैन टाइप योर क्वेश्चंस। ऑलराइट, और कुछ भी आपको क्या करना है, आपको इसका नोट प्रिपेयर करना है सबसे पहले। तो अभी धीरे धीरे जो अपना मेथड है ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में
फोर्थ मेथड जो है प्राइवेट प्लेसमेंट, वो भी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जितने भी क्वेश्चंस आने वाले वो स्मॉल क्वेश्चंस हैं, वो सारे जल्दी जल्दी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। सो इसके लिए आप क्या करो, अभी जितने भी क्वेश्चंस अपलोड किए हैं मैंने, सबसे पहले यू प्रिपेयर योर नोट्स। आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है यू कैन आस्क मी, ऑलराइट। मेरे अगर आपको कुछ ऐसा पर्सनल कोई नोट्स वगैरह चाहिए इसका, तो आप उसके लिए भी मुझसे पूछ सकते हो, ऑलराइट। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।